हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोटैलेंट एंड आई एम नितिन परमार. माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ऑन दिस डेली करंट अफेयर एमसीक्यू मॉड्यूल. Quickly, we are going to talk about some important events and I'm going to give you a lot of background about those events with interesting questions. I'm sure all of you must be ready with this module. The first question comes here is this. I'm sure all of you know this event and you know the answer to this question. Yes or no? What is the event? Nova Kakhovka Dam, which is in southern Ukraine, which was collapsed and caused widespread damage because of flooding. And this is on which river? Okay, that's a question, and I'm sure all of you know that this river is, you can say Dnieper or Dnipro. That is the name of the river. Okay, okay. Now interestingly, this region is controlled by Russia. Okay, this region is controlled by Russia. This is the region. This dam gives water to, you can say, Zaporizhzhia nuclear power plant. This dam is in control of Russia, and when Russia is this dam is in control of Russia, and where this dam is getting collapsed, there are doubts that Russia might have done something wrong. Okay, so what you should know is about this Nova Kakhovka Dam and Zaporizhzhia nuclear power plant. Wonderful. Question number 2. Which ground in England is hosting the ongoing World Test Championship final between India and Australia? 2 दिन जा चुके हैं, इंडिया की हालत अच्छी नहीं है, ठीक है. However, we should know the GK part of it. The answer is the Oval, and I'm sure we all know it's a 2-year cycle in which this ICC World Test Championship takes place. Within this 2 year, various countries participate in various test series, and based on their winning, they get certain points based on their percentage, and based on that percentage they get ranking, and top 2 ranked players will be fighting in this World Test Championship. Number 1 player is, that is number 1 team is Australia, number 2 is India, and we are fighting this battle, and we are hoping that India will do something really wonderfully well so that we are getting this, the maize. Okay, that is the maize we are going to win, and we want to win this dollar prize as well. Okay, great. Question number 3. Who is German defense minister who is currently on tour in India? German defense minister is in India, and he is having good deals with India. Very important for India's future. Okay, and that is Mr. Boris Pistorius. Who is the defense minister of Germany? Boris Pistorius. You should know who is the chancellor of Germany. Olaf Scholz. Olaf Scholz is a chancellor of Germany. Now interestingly, this is a very important deal of $5.2 billion. Approximately 43,000 rupees, 43,000 crore rupees का ये deal है, ठीक है, primarily to build 6 submarines in India. Okay, this is a very important deal. I'm sure the people who are preparing for current affair, they are knowing P75 India project. It is India's biggest Make in India program by which we are making submarines in our country. P75 India. Yes or no? P75 India is a project by India which is domestically making all these submarines. 6 diesel electric attack submarines will be developed in India, will be provided to Indian Navy. Okay, remember this. P75I is what you should remember. Number 4, Prime Minister Narendra Modi's first school in his hometown, Vadnagar. Vadnagar is the hometown of our Prime Minister Narendra Modi, which is in Mehsana district of Gujarat. It is being developed as a model school by what name? Modi Saab has studied from this school. And the name of this school, that's a new name which will be developed, which is known as Prerna.
प्रेरणा, दैट इज इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन के नाम से इसको डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों आपको पता होगा दैट वडनगर इज ऑल्सो इंक्लूडेड in the tentative list of UNESCO World Heritage Site, just like Mathura, Ujjain, Varanasi. These are the historic living cities and they are there, you can say, in the history, or they were there in the history and they are there today. And that's why they are included in the UNESCO World Heritage Sites. So Vadnagar is also included in tentative list. सो अभी उसका लिस्ट फाइनल आना बाकी है। आई एम श्योर यू शुड नो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इंडिया में कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से जल्दी, ठीक है। ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द चीफ साइंटिस्ट ऑफ WHO? WHO के चीफ साइंटिस्ट पहले थे सौम्या स्वामीनाथन, जो इंडियन ओरिजिन के थे, है ना, इंडियन ओरिजिन के थे। हु इज द करंट पर्सन? The current chief scientist of WHO, World Health Organization, which is very important one, कोरोना के दौरान उसका इंपॉर्टेंस काफी बड़ा बन गया था। He is Jeremy Farrar, Jeremy Farrar। Okay, WHO के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए आपको? WHO became functional on 7th April 1948. Remember, 7th April is celebrated as World Health Day. ठीक है दोस्तों, डेज याद रखने पड़ते एग्जाम के लिए, यस और नो, बिल्कुल नोट करिएगा। 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था, उसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। What is the work of WHO? We all have seen WHO का काम during the corona time. They've been telling a lot of information, taking leadership in the health related matters in the world, shaping various research, shaping the directions given to the world. How many member states are there? 194 countries are the member states. Is India a member of it? Yes. Okay. WHO का एक regional body in Southeast Asia is there in New Delhi. So आप quickly मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर WHO के हेड कौन है? Who is the head of WHO? What is his name? Okay. Please mention that in the comment box. Question number 6. What is the name of ship launched anti-submarine torpedo? शिप के द्वारा लॉन्च होगा एक सबमरीन जो समुद्र में जा रही होगी, अगर वो शिप को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने वाली है, अगर एनिमी सबमरीन है तो उसको अटैक करने के लिए एक टॉर्पीडो भेजा जाएगा। टॉर्पीडो इज लाइक अ काइंड ऑफ मिसाइल, है ना, बट इट इज विद इन दी यू कैन से वाटर। ओके, एंड दिस वाज टेस्ट फायर्ड ऑन June 6। नेवी ने डेवलप किया है, ठीक है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है वरुणास्त्र, ठीक है। वरुणास्त्र भगवान वरुण के नाम से बनाया गया है ये, ठीक है। किसने बनाया है? दो बॉडीज, वन इज DRDO, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, एंड सेकेंड वन इज नेवल साइंस टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी, NSTL, और उन्होंने ये इंडियन नेवी को बना के दिया है। इट वॉज टेस्ट फायर्ड सक्सेसफुली एंड इट विल बी कमीशन इन इंडियन नेवी वेरी शॉर्टली, एंड इट इज नेम्ड आफ्टर द वरुण देव, हिंदू गॉड ऑफ ओशन, एंड देयर बाय इट इज नोन एज वरुणास्त्र। ओके, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 7. ईरान claimed that it had created hypersonic missile. एक मिसाइल है, मिसाइल इज ए कैरियर, मिसाइल के ऊपर एक पेलोड होता है। पेलोड का मतलब हो गया कि एक तरीके का वेपन है, एक तरीके का बॉम्ब है ना। स्ट्रेटेजिक हो सकता है, दैट इज न्यूक्लियर बॉम्ब हो सकता है, या कन्वेंशनल एक नॉर्मल बॉम्ब हो सकता है, ठीक है। दिस इज हाउ द मिसाइल, मिसाइल इज ए कैरियर, ठीक है। तो ये मिसाइल बनाई, कैसी मिसाइल है ये? हाइपरसोनिक। What is the meaning of hypersonic? Sonic refers to the speed of the sound. Hypersonic is beyond the speed of the sound. कितनी स्पीड से जाएगा? 15 times the speed of the sound. I'm sure we all know Mach, that is 1 Mach is the speed of the sound, and this is going to move at 15 Mach. क्या स्पीड से जाएगा? 15 Mach. And what is the name of this missile? The name of the missile is Fatah. है ना, फतह इज बेसिकली कॉन्करर। क्या नाम है उसका? व्हाट डज फतह मीन्स? इट मीन्स कॉन्करर। फतह इज अ कॉन्करर। सो क्या क्या टाइप ऑफ मिसाइल है दोस्तों? ब्रह्मोस मिसाइल, ये याद रखिएगा, ब्रह्मोस इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया
एंड रशिया, जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया, और वो दो नदियों के नाम से ये जॉइंट वेंचर बनाया है. वन इज अ ब्राह्मोस रिवर ऑफ इंडिया एंड मॉस्कवा रिवर ऑफ रशिया, इसलिए नाम क्या हो गया, ब्राह्मोस. उसके 2023 में 25 ईयर्स हुए हैं. ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है आपके लिए, ये सुनो. सो दोस्तों, मिसाइल्स दो तरीके की होती है. एक होती है क्रूज मिसाइल और एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल. बैलिस्टिक मिसाइल बहुत ऊपर जाती है ना, मतलब जमीन से बहुत ऊंची हाइट पे जाकर फिर वो लॉन्च होती है वहां से, ठीक है. वाइल क्रूज मिसाइल जमीन से 100 से 200 मीटर की दूरी पे जाती है, ठीक है. बैलिस्टिक मिसाइल जो टारगेट है उस टारगेट को ही डायरेक्टली जाके मारती है. टारगेट अगर चेंज हो जाता है, ठीक है, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द बैलिस्टिक मिसाइल टू अटैक ऑन इट. क्रूज मिसाइल विल एक्चुअली चेंज इट्स पाथ फॉर दी यू कैन से अटैक. ओके, सो अलग अलग तरीके के लॉन्च मोड हो सकते हैं, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, है ना, एयर टू सरफेस, सी टू सी, बहुत सारी चीजें हो सकती है. और उसकी रेंज हो सकती है शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज एंड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल. मतलब इट्स अ लॉन्ग रेंज, 10,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर्स, ऐसी बड़ी बड़ी रेंज की हो सकती है. यस और नो, ग्रेट. और उसका प्रोपल्जन सिस्टम, विच मीन्स उसका जो इंजन है ना, दैट मीन्स उसको जो स्पीड में आगे बढ़ाने के लिए जो उसको पावर दिया जाता है, वो पावर कैसे हो सकता है. सॉलिड प्रोपल्जन हो सकता है, मतलब सॉलिड फ्यूल होगा. लिक्विड प्रोपल्जन हो सकता है, हाइब्रिड प्रोपल्जन हो सकता है, ठीक है. अब आप समझ सकते हैं कि सॉलिड प्रोपल्जन होगा तो वो बहुत दूर तक जाएगा, है ना, ठीक है. फिर आता है आपका क्रायोजेनिक इंजन भी हो सकता है उसका, ठीक है. सो दिस इज हाउ द वैराइटीज ऑफ द you can say missiles. I'm sure you all know BrahMos, याद रहेगा सबको. you can say ब्रह्मपुत्रा एंड मॉस्कवा, ये दो रिवर का मिला के ये जॉइंट वेंचर है इंडिया का एंड रशिया का. उसके आज 2023 में टोटल 25 ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट रॉयल टाइटल डज प्रिंस ऑफ हैरी ऑफ ब्रिटिश रॉयल फैमिली होल्ड. प्रिंस हैरी, उनकी वाइफ मेगान मार्कल, जिनके बारे में सबको पता होगा, ही इज नोन एज ड्यूक ऑफ ससेक्स. क्या बोलते हैं उनको, ड्यूक ऑफ ससेक्स. क्यों वो न्यूज में है, वो न्यूज में इसलिए है दैट ऑन ट्यूसडे प्रिंस हैरी यू कैन से टारगेटेड ऑन दिस न्यूज़पेपर कॉल्ड डेली मिरर, है ना, मिरर ग्रुप के ऊपर टारगेट किया और कहा कि यूके मीडिया, दैट इज मिरर, एंड यूके गवर्नमेंट, दे आर वर्किंग हैंड इन हैंड, है ना, they are working hand in hand and that is not good for democracy. So he said democracy fails when your press fails to hold government accountable and instead choose to get into bed with them so that they can ensure the status quo. This is what he said in London High Court. Okay, so there is a case going on between Mirror and this British Royal. ठीक है भाई, ये भाई साहब ने अपने आप को अगेन से सेल्फ एक्साइल करके रखा हुआ है. पहले ही वेंट टू कनाडा एंड नाउ ही इज इन यूएस. ओके, सो देयर इज अ ह्यूज डिबेट गोइंग ऑन बिटवीन गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट एंड द मीडिया. क्या आपका क्या मानना है, ये बताइए कि मीडिया शुड रिमेन इंडिपेंडेंट और मीडिया शुड एंगेज विद देमसेल्व्स विथ अगेन से एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट. ठीक है, इंडिया में उसके लिए एक बड़ा मजेदार सा नाम है. ठीक है, चलिए ग्रेट. क्वेश्चन नंबर 9, ऑन जून 23 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज और विल बी इन यूएसए and he's going to address a large gathering of Indian diaspora. What is the meaning of diaspora? बताइए कमेंट बॉक्स में, है ना. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरीवन. ठीक है, ही इज गोइंग टू बी इन वॉशिंगटन एंड विच वेन्यू ही इज गोइंग टू एड्रेस, एट विच वेन्यू ही इज गोइंग टू एड्रेस इंडियन डायस्पोरा. ही इज गोइंग टू एड्रेस एट कैनेडी सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स. ठीक है, वहां पे वो एड्रेस करने वाले हैं. और ये जो मीटिंग मतलब यहाँ पे मोदी साहब जाने वाले हैं, उसके पहले एक बड़ी तैयारी हो रही है. और उसकी वजह से यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर जैक सुलिवन आपके सामने जो दिख रहे हैं, ठीक है, ही इज ऑन अ विजिट. ही इज गोइंग टू कम इन इंडिया नेक्स्ट वीक एंड इज गोइंग टू टॉक अबाउट कि किस तरीके से पूरा प्लानिंग करा है. आपके सामने दो लोग दिख रहे हैं, एक इंडिया के
सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत दोवल, और यूएसए के सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवान। याद रहेगा दोस्तों। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज द क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम बेलारूस। बेलारूस की टेनिस प्लेयर, जो अभी फ्रेंच ओपन चल रहा है, ठीक है, आपको पता होगा फ्रेंच ओपन चल रहा है, उस फ्रेंच ओपन में शी सेड आई एम नॉट सपोर्टिंग द वॉर, मीनिंग आई एम नॉट सपोर्टिंग लुकाशेंको राइट नाउ। लुकाशेंको इज दी बेलारूस के हेड है, ही इज अ डिक्टेटर एंड ही इज सपोर्टिंग रशिया। दोस्तों ध्यान रहे, बेलारूस के लुकाशेंको, अलेक्जेंडर लुकाशेंको इज अ डिक्टेटर, पावरफुल डिक्टेटर है, ही इज सपोर्टिंग रशिया इन दिस वॉर एंड दैट इज नॉट लार्ज नंबर ऑफ पीपल अग्रीइंग विथ हिम। ठीक है, वो रशिया के सपोर्ट में, बहुत सारे लोग जो यूक्रेन के सपोर्ट में, दे आर अगेंस्ट बेलारूस। इनफैक्ट इसीलिए वेस्टर्न मीडिया की तरफ से ये लुकाशेंको को अच्छा नहीं माना जाता। और आपने देखा होगा नोबेल पीस प्राइज 2022 में जो 3 से अलग अलग लोगों को मिला, उसमें से एक पर्सन थे और 2 संस्थाएं थी। ठीक है, पहले कौन थे? एलएस बियालित्स्की, जो आपके सामने दिख रहे हैं, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन कॉल मेमोरियल, और तीसरा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। उसमें से एलएस बियालित्स्की इज फ्रॉम बेलारूस। ठीक है, ही इज फ्रॉम बेलारूस, और उनको नोबेल पीस प्राइज इसलिए दिया गया बिकॉज ही हैज बीन कम्युनिकेटिंग अबाउट द टायरनी ऑफ लुकाशेंको। ओके, ठीक है, तो भैया ये है आपके सामने, आपको बताना है इस लेडी का नाम, ये मैं नहीं बता रहा हूं आपको। ठीक है, एक सवाल तो मैं आपके लिए छोड़ सकता हूं ना भैया। चलिए ग्रेट, ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, tell large number of people to be part of ProTalent so that you are getting this regular input from ProTalent. Thank you and all the best.